Hello everyone, a warm welcome to all of you to our YouTube channel CS Ansar. This is Preeti Yadav from CS Ansar and today we'll talk about revised CPE, our requirement for CA members for the calendar year 2026. For that we have someone who does not need any introduction and is very well known, CA Vivek Khurana sir. Thank you, sir, for joining us and giving your valuable time. Before we further ado, I just have a small request to our audience to like, share, subscribe to our YouTube channel, and press the bell icon. Now, I would like sir to share his views for today's topic. But before that, thank you, sir, for joining us again and for completing your LLB. Thank you very much, Preeti, for such a nice introduction and welcome. And yes, today is very lucky day for me. I have just completed LLB exams. So many thanks to my whole well-wisher, my family member, my friends, my teacher, my supporter. So thanks a lot to everyone. So as you said, today we will discuss about the CPRs requirement for the calendar year 2026. So ICI had issued recently this notification, yeah, advisory for the members. First of all, just want to tell you why this CPRs, मतलब what was the purpose, किस purpose के लिए start हुए थे CPRs. At that time, that our leaders or our forefathers, what they were thinking कि our chartered accountant, they should be up to date. Means it's the CP or means continuous professional education. Means they should update on each and every subject like income tax, accounting, GST, auditing, and purpose was there. And for that purpose, yes, they are doing very well. But now it's the time for the technology. And there are two type of CPOs are there. I will guide you. मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा. One is structured, another one is unstructured. Structured means where you have to go for the physically, like seminars. If you are going to some seminars by ICI or by any regional council or by any branches, then they will provide you three, four, five, whatever the CPO's requirements. They will give you for that seminar itself. But now I told you it's the AI time. एक टाइप तो आईसीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रही है हमें एंड सेकंड साइड दे आर सेइंग कि यू शुड गो फॉर द सेमिनार हाउ इट्स पॉसिबल कैसे पॉसिबल है कि मैं किसी सेमिनार में जाऊं फुल डे के लिए फॉर सम सीपीओर्स के लिए इट्स नॉट पॉसिबल पूरा दिन खराब होता है देन और फिर आप उसको कह रहे हो रिकमेंडेटरी करने तो मैं उसको आपको गाइड करूंगा तो माई ओनली रिक्वेस्ट टू द काउंसिल मेंबर टू द प्रेसिडेंट टू द वाइस प्रेसिडेंट जो अपना ये जो बाइफर्केशन की है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड नाउ रिमूव दैट नाउ you should say कि member have to complete the CPOs, either structured or unstructured. No need for the compulsion कि you have to go for the structured CPOs. एंड एक हमारे पास्ट प्रेसिडेंट वो तो सबसे आगे हो गए थे बहुत महान थे आई सैल्यूट देम वो कह रहे थे कि अगर सीपीओस नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिन होगी अरे भाई कोई छोटे बच्चे हैं कि अगर आप सीपीओस नहीं करोगे तो हम डंडा लेके आपको कहोगे नहीं आप करो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिन एक्शन देंगे व्हाट वाज द पर्पस टू एजुकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि अपडेट योरसेल्फ तो आजकल तो वैसे यूट्यूब सोशल मीडिया पे एवरी डे पीपल अपडेट देमसेल्व्स बिना अपडेट तो काम ही नहीं चलेगा देन व्हाई दिस कंपल्शंस आर देयर सो लेट्स डिस्कस जो अभी आईसीआई की जो न्यू रिक्वायरमेंट्स है फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 जो हमारा अभी 2026 स्टार्ट हुआ है तो पहले तो आपका क्या ब्लॉक पीरियड होता था नाउ इट्स फॉर द कैलेंडर ईयर जो पीछे अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट 2 ईयर से वो 22 एवरी ईयर यू हैव टू डू फॉर दैट कि आपको ब्लॉक पीरियड कुछ नहीं है हर साल आपको कंप्लीट करने हैं तो ये जो रिवाइज सीपीओ रिक्वायरमेंट है फॉर द मेंबर्स फॉर ईच कैलेंडर ईयर तो सबसे पहले फॉर द मेंबर्स वो आर होल्डिंग सीओपी और जिनकी एज लेस देन 60 ईयर्स है so if you are holding a COP and your age is less than 60 years, then you have to complete 40 CPOs. Total 40 है उसमें से at least 20 structured CPOs आपको complete करने हैं and rest 20 it can be structured और अनस्ट्रक्चर्ड तो अनस्ट्रक्चर्ड क्या होते हैं जो आप वेबिनार्स के थ्रू या यूट्यूब या अदर वीडियोस यू अपडेट योरसेल्फ थ्रू बाय गोइंग टू द सीपीओ जो वेबसाइट है वहां पे जाके यू कैन क्लेम अनस्ट्रक्चर्ड
तो but structured you have to claim by visiting the either the study circle or the branches or the regional council or the ICI seminar, then only you can claim. Or sometime even ICI allowed 1 or 2 CPOs through any webinars on LC. Here I am saying कि my again request to the council member, to the president, vice president, कि आप ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो 20 मैंडेटरी है, इट शुड बी रिकमेंडेटरी, इट्स ऑन द मेंबर्स चॉइस. कोई आप डंडा लेके नहीं करोगे कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो. नो, इट्स माय ड्यूटी. I have to update myself. Without updation, not possible. How can I do my practice? कैसे कर पाऊंगा मैं अपनी practice? So this is my request. But yes, if you are holding a COP और अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो आपको 40 CPOs कंप्लीट करने इन ए कैलेंडर ईयर. उसमें से 20 आपके स्ट्रक्चर्ड एंड 20 कैन बी स्ट्रक्चर्ड और द अनस्ट्रक्चर्ड. एंड देन if a member means chartered accountant who are the member of the ICI whose age are less than 60 years but residing abroad, बाहर रहता है, तो चाहे उसके पास COP है या नहीं है, उस केस में आपको सिर्फ 20 CPOs कंप्लीट करने हैं, either structured or unstructured. This is very good. This can be to the every member. आप 40 की जगह 50 कर लो, but either structured or unstructured. But this is only for the member who are residing abroad, उनके लिए है, और वो भी 20. Then member age 60 years and above but less than 70 years, कि अगर आप उस एज के अंदर हैं और आपके पास COP है, then you have to complete 30 CPOs इन ए कैलेंडर ईयर 2026 में. आपको 30 CPOs कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिसमें से 20 CPOs जो है आइदर स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड. एंड जो 10 है उसमें भी जो आपके 10 CPOs हैं, इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड थ्रू फिजिकल मोड या DLH के जो मोड है, स्ट्रक्चर वीडियोस. आई टोल्ड यू ना कि कई बार ICI अलाउ द मेंबर्स की आपको स्ट्रक्चर CPOs मिल जाते हैं, कि आपका जो डायरेक्ट लर्निंग जो उनका ICI का हब है उसके थ्रू वीडियो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सेम पोर्शन यू शुड डू फॉर एवरीवन. आप उसमें फीस जनरेट करो, आप लिखो कि यू हैव टू गो फॉर द DLH, जो आपका उनका स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम है DLH के थ्रू. आप वहां पे वॉच करो वीडियोस, एंड देन यू कैन क्लेम आइदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, एंड दैट शुड बी फॉर एवरीवन. जस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हेन ऑनलाइन एवरीथिंग इज देयर, आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हियरिंग यू कैन गो थ्रू द वर्चुअल मोड, then why can't we do this through the virtual mode? Why it's compulsion to go there? कि आप सेमिनार में आपको जाना ही जाना है, मैं यहाँ से बैठ के क्यों नहीं कर सकता? Why should I go there? Because you know in the cities like big cities, दिल्ली, मुंबई, आजकल तो हर जगह कितना ट्रैफिक है. आप 3 hours के सेमिनार्स के लिए आपको पूरा दिन खराब होता है. तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ICI आज नहीं तो कल आपको यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा. सो अगर मेंबर 60 to 70 एज है तो आपको 30 CPOs है, 20 आपको स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड जो आपकी मेंबर्स की चॉइस है, एंड बट 10 जो है आपके थ्रू ओनली, जो आपके फिजिकल मोड के थ्रू है या फिर स्ट्रक्चर जो आपके DLH मोड के थ्रू है. एंड मेंबर एज, अगर कोई एज आपकी 70 ईयर से अबव है बट लेस देन 80 है, तो उनके लिए 20 CPOs है, आइदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एज पर मेंबर चॉइस. एंड इफ ए मेंबर मीन्स मेंबर ऑफ ICI चार्टर्ड अकाउंटेंट. और हाँ, इन केसेस में अगर जो मेंबर आपका 60 to 70 ईयर्स एज है, उस केस में ये सबके लिए अभी तक कंपल्शन है कि आपका COP होना चाहिए. तो अगर आपका COP है तो उस केस में आपके 30 हैं, जिसमें से 20 और 10. और अगर मेंबर की एज 70 to 80 है तो उस केस में 20 CPOs आइदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. और अगर मेंबर्स एज आर अबव 80 ईयर्स तो उस केस में 10 CPOs आइदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. तो आपको दोनों ही मतलब या तो स्ट्रक्चर कर सकते हो या अनस्ट्रक्चर कर सकते हो. देन इफ ए मेंबर एज इज लेस देन 60 ईयर्स बट डजंट होल्ड COP, कि मतलब आइदर आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, कि आपके पास COP नहीं है बट मेंबरशिप है, इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर 20 CPOs. 20 CPOs करने हैं आइदर स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड एज पर मेंबर चॉइस. अनस्ट्रक्चर कैसे करने हैं? आप
साइट पे जाके यू कैन ऑप्ट इट, उसके लिए एक लास्ट डेट है 31 दिसंबर, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, या जो भी उसकी लास्ट डेट होगी कि ऑप्ट इट, कि आई हैव रेड दिस थिंग, आई गो टू आईसीआई वेबसाइट, आई वेंट देयर, मैंने ये वीडियोस चेक करे, मैंने ये चेक करे, एंड यू कैन क्लेम 20 अनस्ट्रक्चर्ड सीपीओस, उसको क्लेम कर सकते हो। एंड इफ यू आर इनटू जॉब or if you are into business and you are the member of ICI, then no compulsion for the structured CPOs, आपको कहीं सेमिनार में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन यू कैन डू, आप डीएलएच के थ्रू भी कर सकते हो, यस, बट इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू डू फॉर द अनस्ट्रक्चर्ड। इफ यू वांट स्ट्रक्चर्ड, अगर आपको जाना है वहां पे, तो यू कैन डू इट, आप वो क्लेम कर सकते हो। एंड मेंबर एज 60 ईयर्स एंड अबोव, अगर उनकी एज ये लेस देन 60 ईयर्स था, यहाँ पे 60 ईयर्स अबोव, तो उनके लिए एग्जम्पशंस है। तो दिस इज द CPOs requirement for the member of ICI for द कैलेंडर ईयर 2026। फिर इन्होंने ये क्राइटेरिया बताया कि आपको कब से कब करना है। हाँ, मैंने भैया आपको बताया, अब आपको हर ईयर कंप्लीट करना है कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर आपका वो ब्लॉक पीरियड वाला कंप्लीट कब का हट चुका है, अब आपको जन टू दिसंबर ही कंप्लीट करने हैं सारे सारे। और जो एज की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि आपकी कोई एज है, अगर इस बिटवीन 59 ईयर 364 डेट है, इन बिटवीन दिस कैलेंडर ईयर आपकी कंप्लीट हो जाती है, देन इट कैन बी 60 या 79 80 वट एवर इट मे बी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये उन्होंने पूरी डिटेल दिया। तो दिस इज रिगार्डिंग द CPOs रिक्वायरमेंट फॉर द मेंबर ऑफ द ICI फॉर कैलेंडर ईयर 2026। तो आई होप जो एक कुछ चेंजेस आए हैं। हाँ, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो पीछे इन्होंने क्या किया था कि आपको यू विल गिव यू द टाइम 6 मंथ करके, आपको नेक्स्ट ईयर आपको डबल करने हैं, जितना भी आपका गैप होगा उसको डबल करने हैं, फिर दे विल गिव यू द टाइम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू हैव टू कंप्लीट। अगर नहीं करते देन दे विल सेंड यू द मेल्स मैसेजेस कि आपके CPOs कंप्लीट नहीं हुए। अगर फिर नहीं होते देन दे विल पुट इट इनटू द वेबसाइट, एंड उसके बाद भी नहीं कंप्लीट होते तो देन there will be issue at the time of the peer review, bank audits, and also they will send this to the discipline directorate, so वो आपके अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है। तो रिमेंबर दैट कि अभी तक दिस इज अभी कोई एग्जम्पशन नहीं है, कुछ नहीं है, यू हैव टू फॉलो, इट्स ओनली माई सजेशन, इट्स ओनली माई रिक्वेस्ट कि ICI शुड डू इट structured or unstructured on the choice of the member. If I have the time, if I want to go for the seminars, I can go and claim the structured CPO. If I don't have the time, then I can do online और उसके बाद मैं उसको claim कर सकता हूँ। So this is regarding the CPOs requirement. Yes, प्रीति जी, आई होप जो एक न्यू अपडेट आई है फ्रॉम द ICI ने जो अभी अपडेट किया है रिगार्डिंग द CPOs रिक्वायरमेंट, क्योंकि अभी हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेंबर हैव टू क्लेम। आपको अगर आप उस एज के अंदर है 60 लेस, तो आपको जो कंप्लीट करने हैं स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर, दैट यू हैव टू कंप्लीट। यस प्रीति जी, Thank कोई you, और sir, इसके for अलावा such a कोई query? wonderful explanation and also for giving time. I hope this cleared all your doubts. Thank you very much once again to the CS and SAR team for giving me the opportunity once again on your platform. So we'll try to bring some other videos on important topics. और वैसे भी अभी जो मेरा favorite topic है बैंक audits, it's coming soon. So we'll start very soon on the series on the bank branch statutory auditor. So thank you very much once again. Bye bye. Take care.